Hare Krishna, good evening, welcome all of you all for our Saturday evening Bhagavatam class. This was, we are in the midst of this Bhishma Stuti. We have finally got the day where we are starting the Bhishma Stuti. We have been around it for a long time, but finally we are starting it. So let's take a fast recap because it's been a long break. So I want to take a fast recap of what we had discussed earlier so that we can start with the Bhishma Stuti together. इसको क्या याद है? फटाफट first. Yudhishthira Maharaj got bewildered. So Krishna that time because for Bhagavad Gita, he wanted to take it to the Bhishma Pitama. Because he was sad, he was bewildered because he thought he is the cause of the entire destruction, the entire Mahabharata war. Crores of people died. So many people have lost their father, mother, children, everyone. So many people were shattered, their lives were shattered. So he was thinking that he was the cause of that pain. But then he said, this time I will bring you in front of a very big devotee. That is Bhishma Pitama, who was lying on the bed of arrows. And he took the entire Pandavas, well decorated, as real kings, and वहाँ जाके उनसे मिलाया Bhishma. And Bhishma, when he saw him, what did he say? Then? You should have died. What is the sloka? Remember? Aho anyayam, aho kashtam, yadunam dharmanandana, na jeevitam krishnamana. Dharma achyuta. Vipra dharma achyuta ashraya. He says, actually you should have not survived. अहो अन्याय अहो कष्टम, क्या क्या अन्याय हुआ तेरे साथ, क्या क्या कष्ट उठा, फिर भी बच गया. How you were saved? Because you had taken the shelter of Vipra, Dharma and Achyuta. Brahman, righteousness, that is Dharma, and finally Achyuta. Achyuta मतलब भगवान का शरण लिया आपने, so you were saved. इसके अलावा what else did he say? He said, this is the same God which people generally get bewildered to understand this God. And finally, you are all now happy. And he is happy also that all the Pandavas are now well settled off. Because what was his pratigya? Because till then he had decided not to live up his body. Ichha mrityu tha na. So what was his pratigya? The kingdom is not in safe hands. He cannot give up. So now he knows. That's why deliberately Krishna bought him. There are multiple purposes. Krishna had bought him not only to remove the, the confusion in the mind of Yudhishthira Maharaj, but also to remove the tension in the heart of Bhishma Pitama. क्योंकि जब तक वो देखेंगे नहीं इन पांडवों को इतने अच्छे राजा बने हुए, तब तक वो कैसे एक्सेप्ट कर सकते कि भाई अभी मैं अब मरने का टाइम आ गया है, मैं प्राण त्याग सकता हूं. तो इस हिसाब से there are two purposes. I mean, Krishna always does multi-purpose action. He does multitasking. He doesn't do like us. He doesn't do simple tasking. He does multitasking, and everything he does perfectly. भीष्म को सामने युधिष्ठिर को लाने के पीछे भी उसका कारण मल्टीपल था. So everything is multi-purpose. And now he knew Bhishma Pita will bless him, bless Yudhishthira Maharaj and the entire thing. And finally, he says in the last two verses, he says very nicely. Open verse number 30. Thereupon, that man who spoke on different subject matters, what did he give? He gave him knowledge on the entire what is dharma. उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को सिखाया कैसे एक राजा को रहना चाहिए, कैसे राजा को धर्म का पालन करना चाहिए, and how everything must be followed correctly. So he gave that thereupon the man who on different subjects spoke on different subjects with thousands of meanings. ये thousands of meaning actually refers to the Vishnu Sahasranam. Because he spoke the Vishnu Sahasranam. वहाँ पे बाणों की सैया में लटके विष्णु पिता ने विष्णु सहस्रनाम गाया, पूरा विष्णु सहस्रनाम गाया. And then of battle,
and protect thousands of men stop speaking. जिसने इतना युद्ध लड़ा था, जितने लोगों को बचाया था, that person completely freed from all bondage, he stopped speaking and withdrew his mind from everything else and fixed his wide open eyes on the original personality of Godhead, Sri Krishna, who stood before him four-handed. What do you understand from this? He was seeing the actual Swarup of Krishna. He was seeing Krishna in the four-handed form. चतुर्भुज रूप में देख रहे थे भगवान को. And क्या पहने थे? पीतांबर. And glittering and shining. That was glittering and shining. Why it is glittering and shining? But how can the Pitambari be glittering and shining? Oh, the Pitambari can be glittering and shining. Divine shine. Please understand. सबसे पुराना कपड़ा अगर दुनिया में कोई है तो वो पीतांबरी है. Well, that is the difference. He is not staying in this dirty material world. He is Satchitanand, and whatever from on him, whatever is there, that is also Satchitanand. So don't worry about that. Then in the next verse, very important. By pure meditation, looking at Lord Krishna, he at once was freed from all material inauspiciousness and was revived of all bodily pain caused by the arrows wounds. जो घाव हुए थे बाणों के शैया में लेट के, उसका जो पीड़ा था, जो दर्द था, उससे वो तुरंत मुक्त हो. Just by focusing his mind on God. And thus all the external activities of his senses at once stopped. He is very important line. All the external activities of his senses at once stopped, and he prayed transcendently to the controller of all living beings while quitting his material body. तैयार हो रहा है अपना प्राण छोड़ने के लिए. तो first thing what you have to do to prepare to leave this material body. मरना तो है ना सबको यहाँ पे. कोई है यहाँ पे अमर? अरे आप लोग सब अमर हो, आत्मा हो ना. आत्मा तो मरने वाले, बट प्राण तो छोड़ना पड़ेगा, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा. और शरीर छोड़ते वक्त क्या करना है? ये जो भीष्म पितामह से सीखना है. He has focused himself on God and restricted, stopped his senses. You know, the whole world is running because of senses. Just imagine. किसी को खाने का इच्छा ही ना हो, मतलब सब चलता है. उसको खिचड़ी खिलाओ, ऐसे उसको कच्चे उबले हुए सब्जी दे दो, वो भी चलता है उसको. वो व्यक्ति कभी जाएगा मेहनत करने के लिए, कमाने के लिए, होटल में जाके खाने के लिए? उसको एसी की जरूरत नहीं है, गर्मी चलेगा, पंखा नहीं चलेगा, सब एवरीथिंग इज साधु की तरह. That's why you see sadhus, they never go to work because they don't need it. The whole world is functioning only because of this senses, gratifying the senses, be it the genitals, be it the body. It's a vicious cycle. It is a vicious cycle. The cycle goes like this. जैसे ही आप शुरू करते हो, जैसे ही आप शुरू करते हो अपना जीवन का सफर, who take over? The senses take over. जन्म लेते ही बच्चे को मम्मी वो चाहिए, कोको कोला चाहिए, थम्स अप चाहिए, चॉकलेट चाहिए. बच्चा आपसे बोल भी नहीं सकता, बट उंगली दिखा, हम लोग खुश हो जाते हैं. हाँ बच्चा मांग रहा है. अरे व्हाट मांग रहा है? His senses are asking. His senses are asking. So from that time senses take over. When he becomes young, his senses demand for the opposite sex. Then they call it so-called love, infatuation, whatever you call it. And then once that is done, then how to live life? अगर गले में जिम्मेदारी तो आ गई, तो उसको चलाना कैसे है? Then kids. So this is how the whole world, even our day-to-day activities and our whole life is somewhere or the other connected to the senses. So that is why his first thing what you have to do when you want to leave your body is
your senses. The sense you can't stop it. Can you stop your senses? आप अपने इंद्रियों को बंद कर सकते हो? ऑन ऑफ स्विच तो है नहीं, तो क्या कर सकते? कंट्रोल भी कितना करो? Concentrate on some other. You have to focus on God. जब भगवान पे आप ध्यान लगाओगे तो आपकी इंद्रियों की जो पूर्ति कर करके आप थके नहीं, और इंद्रियां मांग मांग के कभी थकी नहीं। सेंसेस ने आज तक जितना मांगा आपने उसकी पूर्ति करने की पूरा कोशिश किया, खुश हो गए? बड़ा मेहनत करके चलो आज तो एकदम दबा के खाऊंगा, ये वो होटल में जाके खाऊंगा, ये आइटम खाऊंगा, वो आइटम खाऊंगा, ठीक है आपने यू हैड ऑल दैट, बट आफ्टर ईटिंग ऑल दैट निकलते हो क्या करते हो? अगली बार उस होटल में जाना है, नहीं अभी तो निकले खा पी के पेट में जगह नहीं खाने के लिए, फिर that means what the senses can never be Satisfied. and we are trying to satisfy that senses with all the possible way. It's very difficult. And then this was while quitting the body, and then he started doing the Bhishma Stuti, and Bhishma says iti madhir upakalpita vitrishna bhagavati sashvatam pungave vibhumni swasukham upagate kvachit vihartam pragadam upyeshu yat bhava pravaha. Can anyone read the translation for me? Read. Bhishma Deva said, "Let me now invest my thinking, feeling, and willingly, which were so long engaged in different subjects and occupational duties, in all-powerful Lord Shri Krishna. He is always self-satisfied, but sometimes, being the leader of the devotee, he enjoyed transcendental pleasure by descending to the material world, although from him only the material world is created." First line, what does Bhishma say? Iti matir upakalpita vitrishna. Iti matir matlab that is what? Think, That is the job of the mind, iti matir. The matir करता क्या है? Thinking, willing and feeling. It is not taking a decision, mind you. इसके लिए confusion दुकान में चले जाते हैं, ये ड्रेस लूं कि ये ड्रेस लूं, है ना? कंफ्यूजन होता है कि नहीं? थिंक कर रहा है, नहीं ये अच्छा लगेगा, नहीं नहीं ये अच्छा, नहीं ये अच्छा लगेगा, कुछ नहीं, आइसक्रीम खाने जाओ, कौन सा फ्लेवर खाऊं? कंफ्यूजन। क्यों? माइंड कभी बोलती ये खा ले, नहीं ये खा ले, होटल में गए ये मेन्यू खाऊं, ये मेन्यू खाऊं, कंफ्यूजन। बिकॉज माइंड से ही द होल प्रॉब्लम इज, Lord is, what is Lord saying? You give me your mind. That is why Bhishma Pitya's first thing what he is doing is offering the mind to the Lord. And upakalpita means investing. And कैसे? With Trishna, freed from all senses. Trishna means और दिल मांगे मोर, दैट इज तृष्णा। और जब तृष्णा रहेगा कृष्णा नहीं रहेगा, सिंपल। तृष्णा है तो कृष्णा नहीं रहेगा, कृष्णा है तो तृष्णा नहीं होना चाहिए। उसकी एक छोटी सी कहानी। एक बार उसको कुमंदास जी का तो मैंने काफी स्टोरी सुनी। तो एक बार कुमंदास जी यूज्ड टू सिंग वेरी नाइसली and he was elderly compared to Krishna. Well, Krishna is always Navayavana, so he is always Nandalal, or in Vrindavan he is never more than 8 years. तो 8 साल, आज भी 8 साल के ही, पर आज भी लीला करते हैं भगवान। तो इसके कुमंदास के खेल रहे और बहुत मधुर गाना गाते हैं, to sing very nicely. So he was thinking, how do I sing better for the Lord? हमेशा भगवान के ऊपर कैसे बेहतर और सेवा करूं भगवान को, उसके ऊपर सोचते हैं। एक दिन मान सिंह, राजस्थान का जो राजा मान सिंह,
उनका मन हुआ एक बार मैं जाके इसका गाना सुन के कुमंदास का, और कुमंदास ऐसे तो गाएंगे नहीं, गाएंगे नहीं, चलो एक बार मैं जाके पूछता हूँ उनको कुछ सेवा कर सकता हूँ, because he was very clear, I will sing only for Krishna, I will not sing for anyone else. तो जिस दिन उनकी कुटिया में वो और कृष्णा दोनों बैठे खेल रहे थे, अचानक दरवाजा खटखटाने का आवाज आया, कृष्णा तुरंत खिड़की खोल के भाग के चले गए और मान सिंह किए, राजा मान सिंह तो बोला आपसे थोड़ा विनती करने आया, क्या देखो मुझे आपको कुछ सेवा करने का मुझे मौका दे दो। मैं सोचा, मैं कुमंदास जी ने, ये आया और मेरा कृष्णा चला गया, ये आया और मेरा कृष्णा चला गया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पहले बोला नहीं आप कुछ तो मौका दो। फाइनली ये सेट, एक काम करो, अगर आप मुझे खुश करना ही चाहते हो, मुझे कुछ देना ही चाहते हो, मैं चाहता हूं कि आप यहां से चले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मान सिंह उठ के चला गया, जैसे गए तो मिनट पे कृष्णा वापस आ गए खिड़की से, ऐसे देख रहे थे कोई है कि नहीं, हाँ आजा आजा, बोला क्या कौन आया था, ऐसे कृष्णा डजंट नो एनीथिंग, बोला राजा मान सिंह आया, अच्छा क्या क्या काम से आया था, मांगने आया था, कुछ चाहिए क्या तुमको, आपको कुछ चाहिए, जो भी मतलब सामान ये रसद वसद जो भी चाहिए वो ले लो। उसको बोला देखो तो तुमने क्या किया, भगा दिया उसको यहाँ से, जैसे वो आया आप यहाँ से चले गए। मैं बोला जैसे ये चीजें आएंगी, ये आने से आप चले गए, चीजें आएंगी तो आप तो वापस मिलोगे नहीं मुझे, तो फॉर मी हु इज मोर इम्पोर्टेंट, यू आर मोर इम्पोर्टेंट, नॉट दीज मटेरियल थिंग्स। कृष्णा सिर्फ पागल है, मैंने ही उसका बुद्धि में आइडिया दिया, आई ओनली गिव दिस इंटेलिजेंस टू मान सिंह, so that Mansingh will provide you with all the goody stuff. That why should I get all this goody stuff? When I get goody stuffs, you are running away from my life. So it's better I don't have those things. You be with me in my life. Otherwise, if I take all this, you just imagine. Just imagine. अभी आपके घर पे भगवान प्रकट हो गए या उनके कोई एजेंट प्रकट हो गए और आपको कुछ बहुत सारे सोने के बर्तन और कटोरी, चम्मच और सिल्वर की थाली, तो वो सब हीरे जवाहरात काफी पैकेट भर भर के, डब्बा भर भर के, आप क्या करो? बी ऑनेस्ट, विल यू नॉट टेक आउट एन इन्वेंटरी ऑफ इट? कितना थाली, कितने 10 थाली, हाँ, फिर 20 चम्मच, हाँ 20 वाटी, 20 कटोरी, तो टेक एन इन्वेंटरी. That time are you connected with God? We are connected with the material benefits जो है, and that is what is Lord is trying to tell you. The mind, the body doesn't need gold. Gold के वजह से ही क्या ये शरीर खड़ा रहेगा आपका? So that gold also you can live. People are living, no problem. और हीरे मोती जो भी बोलो, मतलब you don't need all that. Okay, अलंकृत के लिए बेसिकली जो एक, जैसा आप अयोध्या का वर्णन देखोगे रामायण में, कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो सिटीजन था, शहर का निवासी जो था, वो मुकुट पहनता था, मतलब इतना ऑपुलेंस था. That is what Valmiki ji is trying to show, that he was saying that people were having so much of opulence, but उसी पे ध्यान रखना वो गलत. People generally are focused on what they are having, or rather how much they are having, and how much still they got to get. उस हिसाब से even the world's richest man is not yet content. He also wants थोड़ा और, दिल मांगे तो, never ending story. So what is Lord trying to say over here? I mean Bhishma Pitha is trying to say इति मतिर उपकल्पित वितृष्णा. उपकल्पित मतलब I am investing this mind
This mind's job is thinking, willing and feeling. Feeling. What is thinking, willing and feeling? ये तीनों चीज ही हम महसूस कर सकते हैं हमारे मन में. Always I give the example. आप चल के जा रहे हो, दुकान देखा आइसक्रीम, थिंकिंग चल रहा है, एक why not have an आइसक्रीम? पेट भरा है, बट फिर भी. और अगर कोई शराबी हो तो जैसे शराब का दुकान देखा नहीं, why not I go? तो सिगरेट का दुकान मिला, सिगरेट का दुकान में क्यों ना जाऊं? तंबाकू, मावा, whatever you call that, all that various donkey things, वो सब चीजों के लिए who attracts you? कोई फोन और कॉल आता है शराब के दुकान से, प्लीज. कभी ऐड देखा है? ऐड भी नहीं, जरूरत नहीं, बिना ऐड का वो सब आइटम बिकता है. बट यही आपको दाल चावल खाने के लिए, उसके लिए भी ऐड की जरूरत नहीं, वो भी अपने आप बिकता है. जो काम का चीज नहीं उसी के लिए ऐड आता है. ये शैम्पू लगाओ, ये साबुन से नहाओ, आप खूबसूरत बन जाओगे. एंड पीपल आर आल्सो सो फूलिश. So many ads they come, you become 10 years younger, you look younger, you think of साबुन से नहाने से, and there's no connection. That means इतना मैल आपके चेहरे पे कि वो धोने से आप यंग हो जाओगे. You're so dirty. Craziness. So thinking, willing, desiring is also in the mind only. Be it with desire for the opposite sex, be it desire for food, be it desire for anything in this world, it is only in the mind. And last but not the least, feeling. हम लोग कई बार बोलते हैं ना, मन ठीक नहीं, आज आई एम फीलिंग वेरी सैड, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग वेरी मरोज. तो प्रॉब्लम किधर? माइंड. और उसके लिए कितना सिगरेट पिएगा, कितना दारू पिएगा तो ठीक हो जाएगा? हो सकता है, पर पी आप रहे हो दारू, माइंड तो पी नहीं रहे. माइंड इज समथिंग सटल, इट्स नॉट ग्रॉस, इट इज सटल. तो उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट इज इट. इति मते उपकल्पित वितृष्णा भगवती. भगवती मतलब भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, शाश्वताम पुंगवे unto the leader of the devotees. भक्तों का लीडर कौन है? विदुम्नि, to the great. Swasukham or self-satisfaction. Now he is describing about the quality of God. उनके खुद के आनंद के लिए वो नीचे आते हैं, धरती पे आते हैं. इनिशियल अंडरस्टैंडिंग क्या है? पवित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. So this is the generally a. But what is the higher understanding? ये सब करने के लिए उनको आने की जरूरत है. We can sit there and just with one raise of an eyebrow पूरा ब्रह्मांड के ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे. एक जीव का क्या बात है, एक जीव का क्या बात है. इसके लिए एवरी फाइट ऑफ भगवान विद द असुरस इज डायनामिक, एकदम फिल्मी, एकदम फिल्मी, पूरा नाटक. कोई भी असली फाइटिंग ही नहीं है. When विभीषण came to do शरणागति to रामचंद्र जी, विभीषण तो पूरी मानव सेना क्या बोली? इसको लेना नहीं, दुश्मन का भाई है, रावण का भाई है, गुप्तचर है, अपना सेना का न्यूज बता देगा, उसको भगाओ यहां से. तो उसने क्या किया? कहने तो वो शरणागत करने आया तो आई विल एक्सेप्ट हिम. क्यों? व्हाई आई एक्सेप्ट हिम? जस्ट बिकॉज ही हैज कम टू सरेंडर टू. What about him? मैं रावण को भी मैं सरेंडर करेगा तो मैं उसको भी एक्सेप्ट करूंगा. And then they all say, अरे ऐसा करेगा, वैसा करेगा, रात को आके हम लोगों पे हमला करेगा, n number of things, they poison दे के मार देगा, n number of things. So finally, what did Lord Ramchandra say? See, you think with your help only I am killing the asuras? With the tip, agra bhav, with the tip of my nail, tattoo of my left hand, not even right hand. I can kill all the asuras including Ravana in one shot. But I am just playing a game.
from Varaha. Fighting is going on with Asura. इतना लंबा फाइट, क्या जरूरत क्या है? Lord wants such a big fight, and then with one slap, this fellow is killed. Hiranyaksha is killed. Then Hiranyakashipu, only tension बेचारे को. And कितने टाइम में मारा उसको? Between 6 to 6:15 game over. Between 6 to 6:15 15 minutes में गेम खत्म. उठाया, गोद में डाला, फाड़ दिया, खत्म. Then if you see the entire 7th canto, इतना है. एंड में देख रहे हैं, उस killing exactly it only short time. इतना तकलीफ उठाया, वानर लोग को लेके गया, युद्ध, वहाँ वो भी नागपाश में आके गिर गया, this and that. Just fun. Krishna fighting with all the asuras, just fun. Time pass. You see the cartoon, you know, Krishna cartoon, zing 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 zing. Literally, he is playing like that, dancing on Kalya. You think, is it possible for anyone to dance on a Kalya? And अगर मारना चाहता तो why should he dance? He would have killed in 1 second. These are all. You could have not stopped the rain. You could have not stopped Indra from doing that. You could not stop Brahma for doing that. सब कुछ कर सकते थे. My devotees are very happy. गोवर्धन उठा के खड़े हैं. और कैसे? It's written tip of the left hand, छोटा finger, 7 साल का लड़का, tip of the left वो उठा के खड़ा है. And हम लोग भी हाँ क्या strong है, उठा के strong. And then all Gaul saying, no, we will support with our sticks. You take rest. हाँ ठीक है, रखो. कृष्णा हाथ में कर सबको कर. And who is also relaxed? He is playing flute. He is playing flute while killing. इतना difficult. Just imagine आपके हाथ में 10 किलो का वजन. हाँ इतना 10 मिनट उठा के लेके आए घर में. पंखा लाओ, पानी लाओ, हाँ पंखा चालू करो, है ना? घर पे ऐसे करते हैं ना. थोड़ा कुछ मेहनत करके आ गए तो हाय खत्म. भगवान 7 दिन 7 रात तक लेके आराम से बांसुरी बजा रहे हैं, और राधा रानी के साथ नैन मटक्का कर रहे हैं. Cool. That's God. That's what makes him special. That's what makes him great. Any avatar you take, any avatar. बाकी सब अवतार का क्या है? Very short timing span. We discuss more about Ram Leela and Krishna Leela because that was the longest. Though it was only 125 years Lord did, but he did lot of activities and with a model. Every activity of Lord had a. Our every activity is immoral. Totally immoral activities we do. Our thinking itself is immoral because we think from the senses point of view. But Lord is, he doesn't have any requirement. He is self-satisfied. That is why we call him Ram. He doesn't need anything. He is happy in himself. But what do Acharya say? Acharya क्या कहते हैं? Very nice. एको हम भोक्ष्यामि. क्यों? कहते हैं नारायण लेटे लेटे बोर हो गए. क्या? अकेला. Just imagine you are put in a nice bungalow, all latest jacuzzi and whatnot, swimming pool and whatever you say, all best gadgets and everything, huh? But no TV, no internet. Just imagine, no TV, no internet, and nobody inside. But बाकी आपको खाने के लिए the best item, सोने के लिए best बिस्तर, swimming pool, सोना, जकूजी, ये वो सब. बट एक आदमी नहीं रहेगा. चलेगा? Can you enjoy? Within half an hour you will go mad. The same happened with God also. They say. क्या करेगा? अकेला नारायण पे लेटे शेषनाग पे लेटे लेटे नारायण करेंगे क्या? क्या बोर हो गया? But naturally boring. So he said, what will I do? Okay, I will expand myself. एक कहूँ भोक्ष्यामि, मैं बहुत हो जाऊंगा, और फिर उसके साथ खेलो. That is why Lord wants. What is Lord expecting from us? To interact with Him. And हम लोग वो छोड़ के तू अपने घर पे, मैं अपने घर पे.
We are so happy with our temporary ration card and PAN card and Aadhaar card. Huh? We think, hey, मेरे पास है permanent address. Totally impermanent. Huh? You write any form, they ask you temporary address and permanent address. अरे तुम्हारा लाइफ ही परमानेंट नहीं है, तो एड्रेस कहाँ से परमानेंट रहेगा? 25 years, 35 years, आजकल 5-year-old child is getting heart attack and death. So in this material world, what is permanent? What this structure, will it be there for after 150 or 100 years? Do you think this structure will be there? Wherever, if you see, when you see redevelopment, you say, oh, it's redeveloped. Don't worry, after another 100 years, if 500, even 75 or 50 years, there will be another redevelopment of the same place. एंड उसमें आपका घर बनने के पहले जो भी आपका बिल्डिंग या घर जो भी है उसके पहले भी उधर एक कुछ घर था, वो टूट के फिर बाद में वी आर सो ऑब्सेस्ड विद एंटीक. कोई भी एंटीक 1000 साल पुराना है, ये 5000 साल पुराना है, you just take go out and take some sand और मट्टी हाथ में लेना, take a stone, piece of stone. जब से सृष्टि बनी तब से वो स्टोन, तो अभी उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ. एवरीथिंग इज एंटिक एंड सबसे बड़ा एंटिक तुम खुद है. सोल इज द बिगेस्ट एंटिक पीस. दैट इज व्हाई यू आर फैसिनेटेड ना. अरे हाँ, ये मेरे दादाजी का, मैं छोटा था, वी मेनी टाइम्स वी कम अप विद दिस. व्हेन आई वाज स्मॉल आई यूज्ड टू प्ले विद दिस खिलौना. व्हाई वी आर स्मॉल, नाउ आई बिकम बिग. What has changed the body? What was you? The soul remains the same. That is what is the difference between God and you. भगवान में और आप में यही अंतर है. So there is nothing antique in this world. The biggest antique is you yourself, and you can stop yourself from becoming antique in this material world by going back to the spiritual world from where you actually belong to. जहाँ एक्चुअली वहां का योर परमानेंट एड्रेस इज वहां का, ये टेम्पररी एड्रेस है यहाँ. और हम लोग क्या खुश हो जाते हैं, मेरे पास परमानेंट एड्रेस है. एवरीथिंग इज टेम्पररी. अनित्यम असुखम लोकम. लॉर्ड सेज इन द भगवद गीता, अनित्यम असुखम लोकम. ये दोनों वर्ड सुनने के बाद भी ऑपोजिट हम लोग कर रहे हैं. ऑपोजिट. नित्यम, कोई भी फर्नीचर बनाते हो क्या सोचते हैं, कम से कम 50 साल चलना चाहिए. अनित्य है भाई ये दुनिया. एंड यू आर डूइंग, कोई भी कुछ सूटकेस लिया, कपड़ा लिया, फटेगा नहीं ना, तुम फटने वाला है, ये क्या नहीं फटेगा. अनित्यम, लॉर्ड हैज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द भगवद गीता, अनित्यम असुखम. और हर चीज खरीदते हो क्या सोचते हैं हम लोग, मैं सुख पाऊंगा, मिलेगा. That means what, you are smarter than Krishna. भगवान के जो वाणी है, भगवान ने जो वेदों में कहा है, अनित्यम असुखम लोकम, उसमें तुम उल्टा, बराबर उल्टा कर पाओगे. नित्य और ये, Walt Disney wanted to live forever. Why? Michael Jackson wanted to live at least for 125 years. सबसे जल्दी वही मरा. 50 years में he died. And with no some preparation, fight against death. What he could do? He could not fight against death. So please understand, that is why Bhishma Pitamaha is saying very nicely, hey, Swasukham Upagate Kvachit Vihartum. For transcendental pleasure, he is taking birth. एक बाजू आत्मा, सेल्फ सेटिस्फाइड गॉड, और एक बाजू में एक कटोरी छाछ के लिए नाच रहे हैं गोपियों के सामने. टू ऑपोजिट. उसको जरूरत है. मक्खन, घर में 9 लाख गायें हैं, 9 लाख गाय का कितना मक्खन निकलेगा. और क्या चाहिए उसको, पड़ोसी का घर का, उनके घर में जाके मक्खन चोरी करके खाने का आनंद ही उनको अलग मिल रहा है. And daily every gopi is waiting when Lord will come to my house and steal the butter. So he is only doing this for transcendental pleasure.
beautiful song in Tamil where he says when he is caught na stealing, तो सब गोपियां पकड़ के बोलती हैं तू चोर है, हाँ कैसे चोरी करता है, तो शर्म नहीं आता चोरी कर, तो भगवान उल्टा बोलते हैं तू चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरा पूरा खानदान चोर है. Is it true or false? True. Very much true. Because we are taking the energies of God. God is not taking our energies. Please understand. हम भगवान की चीजें, हवा किसका है? गवर्नमेंट का है? गवर्नमेंट भी अपना ही है ना, अपने में से कुछ लोग उनके गवर्नमेंट बनते हैं, तो हवा किसका है, पानी किसका है? Everything is belonging to God. हम फुकट का हवा लेके क्या बोल रहे हैं, तू चोर है. Someone tells ना मेरा तो विश्वास ही उठ गया, कैसे फुकट का हवा की छोड़ देना, अपना हवा बना के खा, सांस ले, अपना पानी मिला के पियो. याद रखो, अगर प्रोटेक्शन चाहिए ना कठिनाइयों से, जैसे अगर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है तो उसको क्या मिलता है, मेडिक्लेम मिलता है. और मेडिक्लेम कब मिलेगा, जब आपने मेडिक्लेम पॉलिसी लिया हो, यानी कि जब आपने प्रीमियम भरा हो. और प्रीमियम भरना मतलब इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, भक्ति करना हो. जब आप भक्ति करोगे देन यू आर टेकिंग सम स्पिरिचुअल इंश्योरेंस. वी आर ऑल बिजी टेकिंग ए मटेरियल इंश्योरेंस, चाहे वो क्या बोलते हैं मेडिक्लेम हो या लाइफ इंश्योरेंस. काय का लाइफ, और कोई एजेंट भी आके बोलते हैं आपको कुछ हो गया तो मतलब यू ऑल्सो नो अनित्यम असुखम लोकम. इन द हार्ट ऑफ हार्ट यू नो, दैट्स व्हाट द एजेंट टेल्स यू. आजकल देखो जितने प्लान तो हमारा 100 वर्ष का है, इन्वेस्टमेंट्स खरीदी ये वो सब हमारा 100 साल का. मगर जब एजेंट आके बोलते हैं आपको लेना अच्छा है, फायदा है, आपको 5 टाइम्स मिलेगा, 10 टाइम्स मिलेगा, तब हम लेते हैं ना रिस्क पॉलिसी. मगर कभी सोचा लाइफ इंश्योरेंस, व्हाट आर आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कंपनी, आई एम सेइंग इज एनी इंश्योरेंस यू टेक, बट व्हाट इंश्योरेंस हैव टेकन फॉर द सोल? Have you taken any insurance for the soul? Have you taken any planning for, कितना भी बड़ा इंश्योरेंस लूंगा, मजा तो मरने के बाद आपके घर वाले करेंगे, आप नहीं करोगे. और मरने के बाद आप, आजकल का जमाना ऐसा है, one of my cousin just passed away few months before, few weeks before, just a month before, and his wife and daughter decided that we will not do any of the sanskars. जला दिया, कृपा होती उन्होंने जला दिया, और बाकी उन्होंने they never did the 12th day function, 11th day function, कुछ नहीं किया. We don't believe it. And mind you, that fellow has earned crores and crores of rupees for them and kept in one. Not crores, crores and crores. Land and this and that, everything. And then what did he get? He didn't get the water of oblation also. So what do we understand from this? All that we are doing in the name of family, in the name of मेरे घर वालों के लिए, मेरे परिजनों के लिए, ये के लिए ठीक है. I'm not deterring you from doing that, but please take the insurance for your soul also. And insurance for the soul, this only premium is going to satsang. The only premium you have to pay, एक ही प्रीमियम है जो आपको सत्संग में जाना है, वही प्रीमियम है, और कुछ प्रीमियम है. और थोड़ा बहुत भगवान का नाम लेना और भगवान की किताबें पढ़ना, उनकी कार्यों का, लीलाओं का पढ़ना, यही है और कुछ नहीं है. दिस इज द सिंपलेस्ट प्रीमियम यू कैन पे. फ्री प्रीमियम है ना, कोई भरेगा, कोई लेगा नहीं. उधर लाखों रुपए भरेंगे प्रीमियम, एंड में काम आएगा. और एंड में क्या काम है? 80 years के, that is a real irony, it's a true fact, but major of the people whom I have seen have become old and died. They have been wearing just 90 at the time of death.
Is it true, doctor? Because the body is totally in a dilapidated state. मतलब कुछ no organs is working. मतलब हाथ नहीं उठाना मुश्किल है. So just they put on gown. In the hospital they put a gown. Even in the house the elders put a gown and they keep you light. पढ़ाओ. हमारा सेवा करेंगे. हमारा दवा ववा सब करेंगे. But what is your महंगे आपने जो लाखों की साड़ी खरीदी थी, हजारों के ड्रेस, हजारों के ज्वेलरी सेट, उसे पहन के बैठती हो आप? Hospital में in fact they ask you to remove everything. If you want to go to an X-ray room also you have to remove everything. Not a piece of metal is allowed in the body. So what to talk about and cremation? तो चांस ही नहीं. So why are we not understanding, realizing what we are seeing day to day? जो रोज देख रहे हैं, देखने के बावजूद हम लोग उससे कुछ सीख नहीं. That is why Bhishma Pitama is very very smart. Yad bhava pravaha upyeshu, do accept it, from whom the creation is made and annihilated. यही व्यक्ति जो है, जो पूरा सृष्टि का निर्माण करता है और उसका संहार करता है, वही व्यक्ति क्या कर रहा है? एक कटोरी छाछ के लिए नाच रहा है, शबरी के बेर खाने के लिए लंबा लंबा चल रहा है ताकि शबरी के बेर मिले, सुग्रीव का मदद मिले. He has to literally beg Sugriv, please help me. He has to sign pacts, kill Vali, do so many things. And when Hanuman comes and gives him the report that, oh, Sita Maiya is okay, she is crying for you, and he also cries, hi Sita. When he sees that Chudamani in his hand, he cries, hi, my wife. When he sees the ornaments, जो सीता ऊपर से जाते हुए जो डाल देती है ऋषिमुख पर्वत पे, जो सुग्रीव और उनकी हनुमान जी निकाल के दिखाते हैं, उसका आभूषण देखते हैं तो दोनों रामचंद्र जी रोने लगते. He's crying, each and every tree को पकड़े, हे सीते, हिरण को पूछ रहे हैं, पेड़ को जाके आलिंगन कर रहे हैं. These are all transcendental pleasure. Transcendental means spiritual pleasure, आध्यात्मिक आनंद, जिसको आप भौतिक दुनिया, भौतिक आनंद के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. You cannot compare. This is different, in a different platform already. भौतिक दुनिया में व्यक्ति यही सोच रहा है, मैं एक लड़की के साथ नाच रहा हूं, मैं खुश हूं. मगर भगवान एक साथ करोड़ों गोपियों के साथ उनकी खुशी के लिए नाच रहे हैं, उनकी खुशी के लिए नहीं नाच, उनकी खुशी, so that they are happy, and from their happiness he derives happiness. Like in the case of Kumandas, he is also deriving happiness, and he wants to provide him stuff, so he makes Mansingh as a instrument. But what is Kumandas saying? पागल हो क्या? मुझे तू चाहिए, ये सब नहीं चाहिए. And he is satisfied without those things. That's what makes the difference between a devotee and so-called we who pose ourselves as devotee, but we are nowhere a devotee. हम अपने आप को एक भक्त बोल लेते हैं, प्रभु जी तिलक डाल लिया, माला भी करते हैं और नॉनवेज छोड़ दिया, दारू छोड़ दिया. ये तो शुरुआत है. भगवान के चरणों में अपना मन लगाने की कोशिश करो. That is why you have to contemplate on the God always. Easiest way, जब कोई अच्छा होता है तो ये सोचना चाहिए मेरा लायकियत नहीं है, मगर भगवान ने मेरे पे कृपा कर दी. और जब कोई बुरा होता है, मेरे कर्म ऐसे थे, फिर भी भगवान ने कम नुकसान दिया मुझे. When anything good happens, think it is a mercy. हम लोग क्या कितना ही मिला और मिलना चाहिए, और प्रॉब्लम हुआ, गलती कुछ तकलीफ हो गया, इतना तेरा पूजा किया, इतना लड्डू पेड़ा चढ़ाया, इतना नारियल फोड़ा, एंड में तू ही मुझे फोड़ दिया. That's what we say, ना? That's what is our, बस यही लेवल पे हमारा दिमाग है. इससे ज्यादा हमारा दिमाग कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता.
टेल यू वन स्मॉल ट्रू इंसिडेंट इन रामायण. एक बार, इट्स नॉट रामायण सर, इट्स अ ट्रू इंसिडेंट व्हिच हैपेंड इन राजस्थान. अगेन राजस्थान की कहानी. एक बार, व्हाट इज द नेम ऑफ कंदोई नाम का एक भक्त था. He was from Rajasthan and he was very nice devotee. मगर भौतिक दुनिया में भौतिक काम कुछ नहीं करता था. घर में रहता था, खाता था, बट दिन भर भजन करता था. और भौतिक दुनिया में लोग क्या सोचते हैं? खाता है, रहता है, but he doesn't contribute anything to our house. ये दुनिया का रीत तो वही है ना. भाई खाता है, दिन भर खाता है, कुछ काम करता नहीं है, घर पे कुछ कमा के लाता नहीं है. तो एक दिन उसको बोला, एक काम करते हैं, तेरा नाम है ना, मेरा अच्छा पहचान है राजा के दरबार में, वहां तेरा नाम लिखा देता हूँ और तू वहां जाके रोज थोड़ा काम कर ले और उसमें से जो पैसा मिलेगा वो तो हमको दे दे. तेरी तो शादी हुई नहीं, कमाता कुछ है नहीं, तेरे कौन लड़की देगा तुझे? सीधी बात है. कमाओ लड़के से शादी होगा, बिना कमाओ लड़के से कोई शादी तो करेगा नहीं. एंड तो यू जस्ट वर्क एंड हम लोग उसका पैसा ले लेंगे और बाकी खा तो रहा है, सो तो रहा है हमारे घर पे, तो यूजिंग द फैसिलिटीज हम ले लेंगे. तो उसने बोला, मैं नहीं, मैं रामचंद्र जी का सेवा करूंगा और किसी का सेवा नहीं करूंगा. मुझे सिर्फ भगवान का सेवा करना है, वही नौकरी करूंगा, यहाँ नौकरी नहीं करूंगा. आप लोगों को मेरा खाना इतना खटक रहा है तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से. तो कहाँ जाएगा? जंगल में जाके रहूंगा. उसने पूछा, तो जंगल में जाएगा ठीक है, पर आज ही तो कल बूढ़ा हो जाएगा, मरेगा, तब तेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? हमारे तो बहू है, बेटा है, पोता है, काका चाचा लड़का है, कोई ना कोई तो करेगा, तेरा कौन करेगा? क्यों? पर मेरा कोई नहीं है तो क्या हुआ? मैं जिनके लिए जा रहा हूं वो करेंगे. भगवान स्वयं आके करेंगे मेरा अंतिम संस्कार. That faith, that determination he had on, and believe it or not, he went to the jungle and वहीं पे जाके भक्ति करते करते एक दिन बूढ़ा होके मर गया. वहां ऊपर साकेत धाम is a धाम where Lord Ramchandra ji stays, and Goloka is a धाम where Krishna stays, and Vaikuntha is the धाम where Vishnu stays or Narayan stays. तो साकेत धाम में हनुमान जी देखे रामचंद्र जी बहुत दुखी बैठे. क्या हो गया, आप दुखी क्यों? मैं क्या करूं, मेरा भक्त गुजर गया. तो मेरे पास आ तो गया है, और उसने जवान दिया था कि उसके अंतिम संस्कार मैं करूंगा, मुझे जाना है नीचे उसका अंतिम संस्कार करने के लिए. तो हनुमान जी बोले, आपने ऑलरेडी इसका तो किया है, जटायु का किया है, एक काम करता हूँ, आप परमिशन दो तो मैं करता हूँ. भगवान बोले, ठीक है, मैं करूँ या मेरे भक्त करे, दोनों एक ही जैसे, जाओ नीचे जाके करो. तो भगवान भी नीचे आए, रामचंद्र जी भी आए और हनुमान जी भी. तो शरीर को डाल दिया, उस लकड़े के खंडे के ऊपर डाल दिया, आग लगाया. कहते हैं जो धुआं निकला था, उस धुआं से जितने भी प्रेत, भूत प्रेत है ना वो जंगल में, सब भगवत धाम चले गए. जितने भी भूत प्रेत थे वो भी उसके जलने के धुएं से. मगर एक प्रेत घूमने चला गया. दे आल्सो कैन गो, ओके, उनका कोई दूर का रिश्तेदार जो होस्ट फैमिली में रहेगा, तो मिलने जाएंगे ना भाई, आप लोग जाते हो ना, यहाँ मैं गाँव जाके आता हूँ, तो वो भी हम गाँव में जाके आता हूँ. बेचारा वो मिस कर गया, he missed. तो when he came back, देखा कोई भी मेरा बरादी का कोई भी आदमी नहीं, एक भी भूत प्रेत नहीं, सब गायब. तो एक साधु महाराज बैठे थे, उसको पूछा, अरे क्या हुआ, सब कहाँ गायब हो गए? सब गए, भगवत धाम गए, they all gone back to रामचंद्र जी लोका, साकेत लोग चले गए. कैसे? ऐसा हुआ, वो मर गया तो उसको जलाया, उसके धुएं मंत्र से. मैंने क्या किया, मुझे क्यों नीचे छोड़ दिया? आपको कुछ करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा. वो साधु ने बोला, ठीक है. गया, जो जहां पे जलाया था
वहां पे ना कुछ खाक था, ना कोई धुआं बचा था, ना कोई निशानी कुछ नहीं थी, बट वो जगह थी। उसी जगह पे थोड़े लकड़े डाले उसको साधु महाराज और उसको आग लगाया, और उस धुएं में से ये प्रेत भी लिबरेट हो गया। Only that place was there. There was no what do you say, remnants of that body or anything. Nothing was there. But this is the power of devotion. भक्ति का ये प्रभाव है। जब तक भक्ति ढंग से नहीं करोगे, इस प्रभाव का आनंद नहीं मिलेगा। See, it is like, after telling you all this, if one doesn't do devotion seriously, it is like having a bottle of honey and then you licking it outside the glass. कोई टेस्ट मिले? कितना भी चाट लो हनी के बोतल को, कोई स्वाद मिलने वाला नहीं है। बट जब आप मेहनत करके उस ढक्कन को खोलोगे और 2 बूंद शहद का अपने जीवा पे डालोगे, then you will say, वाह मधुर, इतना मधुर है वो टेस्ट। Similarly, devotion, when one practices, one actually does devotion, that time only he will enjoy it. Otherwise, it is like going around the swimming pool praising the water inside the pool. बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा पानी लग रहा है, क्या फायदा? जब तक आप अंदर उतरोगे नहीं, पानी में खेलोगे नहीं, तब तक आपको उसका आनंद मिलने वाला। Devotion is also like that. So that is why Bhishma Pita very clearly says, I am offering my mind to that person who is Atmaram, who is self-satisfied, but who comes here to this material world for transcendental happiness. उनका एक ही काम मकसद है, भगवान का एक ही मकसद है, भक्तों के साथ आदान प्रदान। चाहे वो सूरदास हो, मीराबाई हो, चाहे वो कोई भी भक्त हो, आप यू टेक अ लिस्ट ऑफ डिवोटीज, नॉट ओनली दिस युगा, इवन अर्लियर युगास आल्सो, इफ यू टेक द लिस्ट ऑफ डिवोटीज, चाहे वो विदुरानी हो, चाहे वो शबरी हो, ही इज ओनली एंजॉयिंग द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। और कुछ उनके पीछे और कोई मकसद ही नहीं है उनका, नीचे आने का, अवतरण करने का और ये सब करने का। उसके लिए द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज भगवान का नाम लेना। और अक्सर कहा जाता है कि कृते ध्यायतो विष्णु, कृते ध्यायतो विष्णु द्वापरे परिचर्यायाम, सॉरी त्रेतायाम यज्ञतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम एंड कलौ कीर्तनादि एवं कृष्णस्य। सिर्फ भगवान का नाम लेना ही कलयुग का धर्म है। इसका मतलब पहले युगों में नहीं था क्या? Was it there or not? This shloka doesn't derive the existence of holy name in the earlier. प्रहलाद महाराज क्या कर रहे थे? ध्रुव महाराज क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे, पर कोई भगवान का नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ एक टांग पे खड़ा रहूंगा। He was doing Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So he was chanting the name of the Lord. Be it be Prahlad Maharaj, be it be Dhruv Maharaj, be it be Amrish Maharaj, everyone in every yuga, even Shabri was waiting for the Lord, chanting His name, serving the sadhus. Vaishnava Seva तभी भी कर रही है। If one doesn't do Vaishnava Seva and he thinks मैं सिर्फ भगवान नाम लेके कर निकल जाऊंगी, impossible. Vaishnava Seva, Guru Seva. Guru Seva means Guru का आज्ञा, orders follow. And last but not the least, भगवान का स्मरण, yes, by chanting and singing His glories. If one doesn't do this, mind you, he is in a big problem. Any one done and the other two not done, his ticket back to Godhead is impossible to complete. It is a package.
You have to do Vaishnav Seva. You will have to do Guru Seva or Guru Agya का पालन. And last but not the least, chanting the name. आप बोलेंगे मैं सिर्फ गुरु सेवा करूंगा, भगवान का नाम नहीं लूंगा. मैं सिर्फ वैष्णव का सेवा करूंगा और गुरु का सेवा करूंगा, भगवान का नाम नहीं लूंगा. मैं सिर्फ भगवान का नाम लूंगा और बाकी कुछ सेवा नहीं करूंगा, वो भी नहीं चलेगा. So similarly, chanting the holy name was existing right from Satyuga. It is not only in this yuga that chanting is there, but धीरे धीरे बाकी सब चीजें करने का जो इंटेलिजेंस एंड जो शारीरिक ताकत जो था वो खत्म. We don't have a lifespan. इसके लिए हम लोग बार बार बोलते हैं ना, प्रायण अल्पायुष सब कलवस्मिनी के जना मंद सुमंद मध्य मंद भाग्य. सब कुछ मंद है, सब भाग्य भी मंद है, नसीब भी खोटा है. आप जाओगे जंगल में, बराबर मालूम पड़ा वहां बिल्डर आ गया, वहां बिल्डिंग करा दे. क्या करूं, कौन से जंगल में जाऊं? कलयुग में कहां से आपको जंगल मिलेगा? फिर हवन करना है, यज्ञ करना है, पहले पंडित पकड़ना पड़ेगा. पंडित खुद आजकल सब गलत चीज खा के पूजा कर रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट फ्यू आर डूइंग. सो अच्छा पंडित ढूंढना भी मुश्किल हो गया आप लोगों को. और रही बात तपस्या नहीं कर सकते हो, ये मंदिर कहाँ टाइम है प्रभु. बॉम्बे में इतना ट्रैफिक है, कहाँ जाए मंदिर? चाहे तो भी 2-2 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है. नहीं चला मंदिर में. ठीक है, कुछ मत करो, बट साथ में जो उसके साथ जो एडिशनल था ना वो तो करो. So rest of the things have been eliminated in the due course of time. But chanting was existing then also, and it is still existing. And in this Kali Yuga, वही एक चीज बचा है और उसी पे ही पूरा फोकस भी है. एंड क्योंकि कलयुग बहुत छोटा है, जीवन का काल बहुत छोटा है, so very lifespan is very short in Kali Yuga. 50 प्लस से आपका काटा कभी भी कुछ भी हो सकता है. So what do? You prepare for death at the moment of death. LIC पॉलिसी कब निकालते? डॉक्टर बोलेगा आपका कोई भरोसा नहीं. LIC वाले को बोला, इंश्योरेंस वाले को बोला पॉलिसी निकाल दो, वो पॉलिसी वो भी नहीं निकालेगी, वो भी नहीं देगा. मेडिक्लेम वाला डॉक्टर ने बोला अगला आपका ऑपरेशन, चलो मेडिक्लेम लेता हूँ, पहले से भरना. जब मतलब when you are healthy you have to take a mediclaim. When you are alive and fit, and of course nobody knows when he is going to die, but when you are alive and fit you have to take the insurance policy. So when you want to get liberation, when you are fit, when you are alive, that time only you have to start your devotions. That includes chanting the holy name and doing Vaishnava Seva and Guru Agya ka palan karna. These are the things which has to be done. If any one is missing, next to us. Hare Krishna. With this I like to close today's class. Anybody has got any doubts, questions, can ask. Is there a question?